वाहिगुरु वाहिगुरु। आसा महला पंजवा। गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधार। जागी सेवा सर्ब सुख पावै, अवर काहू पह बोल ना जावै। सदा आनंदे आनंदी साहिब, गुण निदान नित नित जापीऐ। बलिहारी तिस संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मन वासिया रहो। जाका दान निकुटै नहीं, भली भांत सब सहज समाहि। जाकी बख्श ना मिटे कोई, मन वसाइया सचा सोई। सगल समगरी ग्रह जाके पूर्ण, प्रभु कै सेवक दुख न चूरन। ओट गही निर्भव पद पाइय, सास सास सो गुण निध गाइय। दूर न होई कतू जाइय, नदर करे तां हर हर पाइय। अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगै हर तन रास। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबदे वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दे सागर गुरुआं दे गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी। धनता दे योग असी सारे ही बड़ भागे हाँ, जो गुरु जी की गोद विच बह के सानू गुरु की बख्शिश मेहर कृपा प्राप्त करन दा आनंद मिलिया। ध्यान देना, गुरु की हजूरी दे विच जिहड़ा आ जांदा है, उहदी हाज़री लग जाती है। ये वक्री गल है, किसी की अपनी आत्मक अवस्था कैसी है। स्कूल दे विच बच्चे पढ़न जाते हैं, उन्होंने विच हुशियार भी होंदे ने, नॉर्मल भी होंदे ने, बिल्कुल जिहड़े नहीं पढ़ सकते वो भी होंदे ने। पर जदों वो स्कूल दे विच एंटर होंदे ने, सब तो पहला उन्हां दी अटेंडेंस लगदी है। पढ़ाई ते बाद दी गल है। वो पढ़न वाले बच्चों दे विच कुछ बहुत होशियार होंदे ने, कुछ मीडियम होंदे ने, नॉर्मल होंदे ने, कुछ बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़न दे बाद भी कुछ सीख नहीं पाते। पर जदों वो स्कूल दे विच पहुँच जाते हैं, क्लास विच हाज़र हो जाते हैं, उन्हां दी हाज़री लग जाती है। जिहड़े बच्चे बहुत ज़्यादा
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰੇ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸ ਫੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੀ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕਾਬੀ ਉਤਾਰ, ਉਸ ਸੀਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਧੜ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਗਨ? ਜਠਰ ਅਗਨ, ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਅਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਠਰ ਅਗਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਠਰ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹੈ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਸਟ ਮਿਲਦਾ? ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰ ਬਵਿਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ,
ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਭੁਖ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਬਲ, ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੌ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਹ ਨਾਲ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲਿੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟਣਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਤੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਜਾਲ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ 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 ਚੁਗਦੇ
उस जाल विच फस जाते सी ते वो शिकारी उन्होंने फड़ के लै जाता सी, वेच दिंदा सी जां मार दिंदा सी, जो भी करदा सी। इसे तरह बहुत समा चलता रहा। कहते किसी सियाणे ने उन्होंने सलाह दी एज ए लॉजिक, आप दे नाल सांझ पा रहे हैं। किसी सियाणे ने सलाह दी भी मैं तुहानू पाठ पढ़ाउना, तुसी फस जाते हो, तुहानू शिकारी कैद करके लै जाता, गुलाम बना के रखदा, तुहानू मार दिंदा। आ जिहड़े बांदर नचाउंदे ने, मदारी जिहड़े आंदे ने साडीआं गलियां दे विच, एक पहाड़ियां ते तुसीं देखा मंकीस उत्थे टप्पदे ने, नचदे ने अपने खुशी दे नाल, ते एक नूं रस्सी पा के कैद कीता हुंदा, डमरू बजा के उहदे तों पैसे इकट्ठे करदे ने, कमाई करदे ने। वो आज़ाद नहीं है, वो गुलाम है, आज़ाद नहीं है। किसी ने पंछियों नूं पढ़ाया भी इदां करो, तुहानू कुछ सिक्ख्या दिंदे आ, फस ना जाया करो, तुहानू सिक्ख्या दिंदे आ, फस ना जाया करो। वो कहंदे दे सिक्ख्या। पंछियों नूं सिक्ख्या मिली, शिकारी आएगा, जाल विछाएगा, चोगा पाएगा, सानू फसाएगा, असी फसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल विछाएगा, चोगा पाएगा, सानू फसाएगा, असी फसना नहीं। वो पंछी जड़े ने, खास करके तोते जड़े ने, वो तो रट लेंदे ने। पंछियां ने रट लिया, वो पढ़ी जान पढ़ी जान पढ़ी जान। वो शिकारी आ गया, शिकारी ने देखा वो आ की पढ़ते पे ने। शिकारी आएगा, जाल विछाएगा, चोगा पाएगा, सानू फसाएगा, असी फसना नहीं। शिकारी कहता अज तो खाली रह जाना, इन्होंने किन्ने पढ़ा दी ये गल, हो अज तो मैं खाली जावांगा, अज नहीं फसना इन्होंने। कहता चल कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, जाल ला दिन्ने आ, देख लें की बनता। वो जाल ला के चोगा पा के ते एक पासे ओले बह गया। वो पंछी आए, नाले जाल दे उपर डिग्या, चोगा चुगी जाते ने, नाले कहते ने शिकारी आएगा, चोगा पाएगा, जाल विछाएगा, सानू फसाएगा, असी फसना नहीं। नाले उस जाल दे उपर ने मौत आने वाली है, नाले पढ़ी जाते ने शिकारी आएगा, जाल विछाएगा, चोगा पाएगा, सानू फसाएगा, असी फसना नहीं। तो उसने शिकारी ने फसा ले, उसने फसा ले। वो जिन्हें सबक पढ़ाया सी उन्होंने कहते लै ये तो सानू फड़ के लै चलिया, तेरे पढ़ाउण दा की फायदा होया। वो कहता मूर्खो, कला पढ़ना नहीं सी, वो कला पढ़ना नहीं सी, ਇਹਦੇ ਤੇ विचार करना सी भई ये असी उत्थे नहीं जाना, तुसी ते कल्ले पढ़ते ही रहे, तां करके फस गए। जे तुसी विचार किया हुंदा, जे ध्यान दिता हुंदा, जे दिमाग तो कम लिया हुंदा, ते फिर तुसी बच जाते। तुसी ते पढ़ पढ़ के ही फस गए। आसा दी वार विच गुरु साहब फरमान करदे, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बरस बरस सालां बद्धी पढ़दा रहा, फिर फस के रह गया। ध्यान देना, क्योंकि महाराज जी ने बाणी दे विच पढ़ाया सी भई इस संसार दे रसां दे विच, इस संसार दी माया दे विच फसना नहीं। ये कहंदा सी माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मेरे वर्गे भाई साहब ने भी सुना दिता ते सुनने वाले ने सुन भी लिया, पर जांदे ही फस गया, जांदे ही फस गया, राह दे विच ही फस गया। निंदिया चुगली झूठ बोल दिता, नाल ही फस गया, नाल ही फस गया। इत्थे गुरु साहब ने कहा सी भी निंदा भली किसी की ना ही मनमुख मुग्ध करन, ये घर जांदा ही शुरू कर गया, पंछियों वांगू फस गया। सिर्फ पढ़िया तो सुनिया, पढ़न सुनन दे नाल महाराज जी कहंदे छुटकारा नहीं हुंदा, आज़ादी नहीं मिलती, पढ़न दे नाल मुक्ति नहीं मिलती, मनन दे नाल मुक्ति मिलती है, पढ़न दे नाल नहीं। चीज़ नूं विचारन दे नाल गुलामी तो आज़ादी मिलती है। ध्यान देना, असी इस संसार दे विच रह रहे हाँ,
जे असी अपनियां वासनावां दे शिकार हाँ, जे असी गुलाम हाँ अपनी मन मर्जी दे, फिर असी जीवन दे विच अगे नहीं वध सकदे। महाराज जी कहते तू गुलाम जरूर बनना, सिर्फ केवल गुरु दा। महाराज जी कहते होर किसी दा गुलाम नहीं बनना। ना घर दे विच कोई किसी नूं गुलाम बनावे, ध्यान देना, ना कोई समाज दे विच, ना देश विच, ना कौम विच, ना संसार दे विच। गुरु साहब ने बाणी विच लिखिया, गुलाम घर का कबीर गुलाम घर का, भी मैं तेरे घर का गुलाम बन जावां, मुहताज होवां ते तेरे घर का, बस होर किसी की मुहताजी नहीं, होर किसी की गुलामी नहीं। कबीर गुलाम घर का जियाए भावें मार, मैं बनना गुलाम ते तेरा, गोला बनना ते तेरा, दास बनना ते तेरा, भावें मार दमी भावें रख लई। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। इस करके गुरु साहब जी कहते ने, जे दास बनना ते नानक दास, गुलाम बनना ते केवल गुरु नानक दा। ये नहीं भी संसार दे विच सानू कोई गुलाम बना के रखे, अमीर गरीब नू बनाई रखे, तकड़ा माड़े नू बनाई रखे, पढ़िया लिखिया अनपढ़ नू बनाई रखे, ताकत वाला मतलब जिहदे विच ताकत नहीं है निर्बल है उन्होंने बनाई रखे, पूंजीपति जिहड़ा वो अपने नौकर नू सीरी नू उन्होंने बनाई रखे। ना 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 ना, साडे गुरु साहब कहंदे ने, साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सारियां नू बराबर दा हक जिहड़ा दिता गया, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो खत्री है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है। गुरु साहब ने, गुरु अमरदास जी ने लंगर प्रथा शुरू की ना, इक्को ही टाट लाता, इक्को ही टाट। उस टाट ते उस समय का अकबर बादशाह बहिंदा है, उत्थे जड़े बाहर मंगते हैं ना गुरु घर दे, मतलब गोइंदवाल साहब, वो भी उस टाट ते बहिंदे ने। ते अकबर देख के ना नाराज़ नहीं होया भी उस टाट ते लूले लंगड़े बैठे ने, उस टाट ते भिखारी बैठे ने, उस टाट ते मैं बादशाह मैनू उत्थे बिठाता, नहीं तो बादशाह वास्ते तो स्पैशल रूम हुंदा, उत्थे बिठा के उन्होंने खवाया जाता है। वो नाराज़ नहीं होया, उस ये बराबरता देख के, उस समानता देख के, वो गुरु घर दे विच इन्नी वड्डी चीज़ देख के वो इन्ना खुश होया, कहंदा भी मेरे वल्लों तुहानू जे जगीर चाहिए जगीर लै लो, जे कोई पैसा चाहिए पैसा, जो कुछ चाहिए लै लो, मतलब तुहाडी इन्नी वधिया सोच तो मैं सदके जांदा। अकबर बादशाह कहंदा भी तुसीं निमाणियां नूं मान दिंदे हो, तुसीं कोई नहीं जात देखी, तुसीं शूद्र नहीं देखिया, वैश्य नहीं देखिया, ब्राह्मण नहीं देखिया, खतरी नहीं देखिया, राजा नहीं देखिया, रंक नहीं देखिया, भिखारी नहीं देखिया, कोई भी नहीं देखिया, तुसीं इक्को ही पंगत दे विच सब नूं बराबरता दे दित्ती। इस करके गुरु सानू सारियां नूं बराबर रखदा है, कोई किसे ते किसे किस्म का जुल्म या रोब ना पावे। ये गुरु साहब जी कहंदे ने, कबीर जोरी कीए जुल्म है, ले जवाब खुदाए। जे कोई घर दे विच किसे ते जोर जुल्म करदा है ते खुदा ने जवाब लैना है। हमेशा दूसरे नूं सत्कार दईदा, ना कि दूसरे नूं दबाईदा जां जलील करीदा। बाणी विच लिखिआ, कबीर जोरी कीए जुल्म है, ले जवाब खुदाए। जे किसी ने किसी दे जुल्म कर दिता, जे किसी ने किसी दे जोर कर दिता, तो फिर महाराज जी ने बाबर नूं कहा सी, बाबरा जावरा, उन्होंने जावर कहते हैं, बाणी विच कहते हैं जिहड़ा किसे ते कोई भी किसी किस्म का कोई दुख दिंदा है, किसी नूं दबदा है, किसी नूं गुलाम बनाउंदा है, उन्होंने बिल्कुल इंसान नहीं, उन्होंने जावर कहा, जावर। महाराज जी ने बाणी विच ते ये कह दिता सी भी खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, तैं की दर्द ना आया। उन्होंने महाराज जी ने सलाया नहीं, जिन्हों ने गरीबां नूं गल ना लाया, जिन्हों ने गरीब नूं उच्चा चुकिया, जिन्हों ने हमदर्दी की, जिन्हों ने सारी लुकाई नूं प्यार किया,
जिन्हां ने सब दा सत्कार किया, जिन्हां ने सब नूं प्रेम किया। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ना छींबा देखिया, ना उन्होंने नाई देखिया। सैन जी नूं कहंदे आ जा गुरु ग्रंथ साहब विच, भगत रविदास जी नूं कहंदे आ जा, जुलाहा छींबा सारियां नूं कहंदे आ जाओ, बिठा लिया। ते जिहड़े बड़े 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 उच्चियां जातां वाले आए सी, पीलू ते छज्जू ते होर शाह हुसैन इदां लिखे हुए, वो बड़े सियाने सियाने आए सी कि साडी भी रचना इहदे विच अंकित करो जिहड़ा तुहाडा ग्रंथ है। गुरु साहब जी कहंदे नहीं नहीं, कहंदे उन्हां दी कर दित्ती जिन्हां नूं नीच कहंदे ने शूद्र। महाराज जी कहंदे वो नीच नहीं, नीच नूं ते असीं नीच नूं ते कोई घर नहीं वड़न दिंदा। गुरु ग्रंथ साहब जी कित्थों आंदा हैगा, इत्थे नीच नहीं। उन्हां दी सोच, उन्हां दे उच्चे सुच्चे विचार, उन्हां दी कमाई नूं असीं सिर झुकाने आ ते दुनिया भी झुकाएगी। इस करके जिसने कदर कीती कदरदान ने, जिस कदरदान ने गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कदर कीती साडे भगतां प्यारियां दी, ते अज नमस्कारां गुरु नूं भी असीं वडियाउंदे हां, गुरु दे सिखां नूं भी ते भगतां नूं भी। भी धन गुरु दे सिख ते धन वो भगत जिन्हां विच इन्नी लियाकत सी भी गुरु साहब ने अपने छाती नाल ला लिया, कंठ लाए, अवगुण सब मिटे, दयाल पुरख बख्शन। सो बहुत प्यारा शब्द अज दा, गाव लेह तू गावन हारे। सो महाराज जी कहते मौका मिलिया गाउण दा गा लै, मौका मिलिया सुण दा सुन लै। ध्यान देना, जिस दे जीवन दे 10 वर्ष निकल गए, जिन्हें नहीं गाया पछतावा होएगा। जिस दे जीवन दे विचों 10 ਤੋਂ 20 साल दी जवानी भरी रुत जिहड़ी निकली जा रही है, उसनूं जे सोझी आई 21वें साल वो पछताएगा 20 साल तक मैं क्यों नहीं इधरले पासे जुड़िया। जे 20 साल तो लैके पूरी जवानी 30 साल तक जे वो भी बगैर सोचिया लंघ गई तो 31वें साल दे विच पछतावा होएगा भी 30 साल एवें लंघ गए। जे इस तरह 40 50 60 70 जे कोई 90 साल का हो गया ना अजे तक नहीं जुड़िया, बाणी हुण दस रही है भी वो भी घबरे ना, घबराए ना। जिस दी कोई 80 90 साल की भी हो गई है, अजे तक कख भी नहीं किया, इधरले पासे आया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। उन बाबा फरीद जी कहते तैनू मैं आस दा एक दीवा देना। वो केड़ा? फरीदा काली धौली। काली धौली मतलब काले वाले जवान होंदे ने, तो धौली वाले मतलब बुढ़े होंदे ने। फरीदा काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे। जे तू हुण बुढ़ा हो गया कोई गल नहीं, जे धौले आ गए कोई गल नहीं, पर तू जुड़ जा, साहब अजे भी तेनों उडीकदा पिया है। बाबा अमरदास महाराज जी की 60 साल की उम्र लंघ चुकी सी, वो कहते असीं भटकदे ही रहे। तो जदों पूर्ण सतगुरु जी की शरण दे विच गए सी, गुरु अंगद साहब महाराज जी शरण में 60 साल तो बाद फिर जाके वो 72 साल की उम्र दे विच उन्होंने वो बख्शिश प्राप्त होई। नहीं तो 72 साल का बजुर्ग कहता हुण किते साडा भला होना, हुण तो असीं बस गए, हुण तो जिंदगी में बहुत पाप कर ले, आ हो गया। महाराज जी कहते नहीं, भगत रविदास जी कहते ना, यही तो तेनों सिखाउणा। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। नौवें पातशाह का भी पंक्ति बाणी पढ़ लें हमें, अजहूँ कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे। अजे तक भी तेरे को समा है, भावें 1 दिन का होवे, भावें 1 साल का, भावें 10 साल का, सब समा तो है। जे तू आखिरी सवास ते भी जुड़ गया ना, अंत काल नारायण सिमरे, इतों तक लिख दिता बाणी विच। जे किते तेनों आखिरी सवास ते भी सोझी आ गई, अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे बदत तलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वाक्य हृदय वसे। वह पार उतारा हो जाना। इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते गावल हे तू गावन हारे। तू गीत सुनिया कर दे, गीत गाया कर केड़े? राम दे, रब दे। जी पिंड के प्राणे आधारे। वो तेरे शरीर का, तेरे पिंड का, तेरी जिंद जान का आधार है, तेरा आसरा है। साडी जिंद का आसरा हो, साडी तंदुरुस्ती का वो आसरा, वो सानू अंदरों उन्हें खुश रखना, सब कुछ हो ही है। जियो पिंड के प्राणे आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पावे।
सो उसनों याद करके तू सारे सुखां नूं प्राप्त कर लेंगा। अवर काहो पै बौड़ ना जावे, तो तैनूं किसी दे घर होर मंगण वास्ते जाना नहीं पेगा। इक्को ही घर रख लै, इक्को ही घर आके मंगिया कर, इक्को ही घर दे अगे हथ जोड़िया कर, तैनूं दर दर जाण दी जरूरत नहीं पेगी। दर दर ते जिहड़ा जाएगा वो पिटिया जाएगा। ध्यान देना, जिहड़ा एक दर ते मेरे मन एकस स्यों चित लाए, जिहड़ा एक दे नाल जुड़िया रहेगा वो तर जाएगा। अवर काहो पै बौड़ ना जावे, उन्होंने होर दर ते नहीं जाना पएगा, क्योंकि पूर्ण गुरु है। गुरु सदा पूर्ण है। सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है। सो गुणा का खजाना है, उसनों महाराज जी कहते याद करके गुण लै जिया कर। बलिहारी तिस संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहो। सो उन्हां रब दे प्यारियां तों सदके जाना चाहिए, जिन्हां दे मन विच वो वसिया होया। बलिहारी तिस संत प्यारे, उन्हां रब दे प्यारियां तों बलिहारी जाना चाहिए। उन्हां नूं देख के खुश होना चाहिए। नाम जपण वालियां नूं देख के खुश होना चाहिए। नाम जपण वालियां नूं देख के गुस्से नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बलिहारी तिस संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। जिन्हां तो सुन करके, जिन्हां दी संगत करके रब साडे अंदर वस गया, उन्हां तो बलिहारी जाया करो। गुरु साहब जी कहते जाका दान निखुटे नहीं। महाराज जी कहते जिस दी दिती हुई दात मुकदी नहीं, भली भांत सब सहज समाही। गुरु साहब ने ये चीज़ सानू भली भांत दर्शा दी है, साडे मन विच टिका दी है। जाकी बख्श ना मेटे कोई, मेटे कोई, ओदी बख्शिश नूं कोई मेट नहीं सकदा, ओदी बख्शिश नूं कोई जिहड़ा है खो नहीं सकदा। रब दी बख्शिश जिस ते हो जाती है सत्संग जी, उन्होंने कोई खो नहीं सकता। बख्शिश का मतलब ये ना समझना भी किसी को रुपये ज़्यादा मिल जाए भी वो बख्शिश है। कि भगत प्यारे, रब दे प्यारे, मैं पहला भी बड़ी बार कहा, उन्होंने घर दे विच ते बड़ी गरीबी है, पर वो कहते ने इन्हां दे पूरी बख्शिश है। भगत रविदास महाराज जी के घर तो कुछ भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल है, पर उन्होंने पूरी बख्शिश है। भगत कबीर जी का जीवन पढ़ो, 2 वक्त के नहीं उन्होंने घर अनाज हुंदा सी, आटा नहीं हुंदा सी, पर उन्होंने ते बख्शिश पूरी है। बख्शिश का मतलब कोई धन पदार्थ या उच्चे महल नहीं। असी समझ लेने भी बड़ी बख्शिश है भी तेरे ते बई बड़े रंग लगे ने। असी रंग रंग पता किनू कहने, कोई अमीर होवे, किसी दियां कोई कोठियां वड्डियां होण, असी उन्होंने कहने रंग लगे। वो नहीं, जिहड़ा अंदरों शांति नहीं, अंदरों वड्डियां कोठियां विच कलपदा पिया, झगड़ियां दे विच पिया, लड़ाई हुंदी एक दूजे नाल, प्यार नहीं सत्कार नहीं, वो काहदी बख्शिश है। तो जिहड़ा माह बड़ी प्यारी पंक्ति आ रही, कहते भली सुहावी छापरी, वो छन चंगी, वो छपड़ी चंगी, भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए। कित ही कामना धौल हर, जित हर बसराए। तो जिथे हरि का नाम विसरिया होया, वो भावें जिहड़ी मर्जी चीज़ जगह होवे, वो महाराज जी कहते सही नगर उजाड़ी जी। वो कहते ने जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, सियास्थल सोए न चुबारे। जिथे नाम न जपीए मेरे गोविंदा, सही नगर उजाड़ी जियो। सो तेरे ते बख्शिश पता की है? ज्ञान, तेरे विच लियाकत, तेरी योग्यता नूं देख के दुनिया तेरे वल आवे, इनू कहंदे ने बख्शिश। तेरी गल सुन के किसी नूं ठंडक पै जावे, तैनू देख के किसी नूं सुख मिले। ध्यान देना, किसी बंदे दे दर्शन करके ना सुख मिलता है, तो किसी बंदे दे दर्शन करके काली पैंदी है। ऐदां हुंदा ना, मैं भी तुहाडे नाल हाँ। हो सकदा किसी नूं देख के तुहानूं खुशी मिलती, शुक्र है भी ये बंदा, बड़ा ही चाऽ चढ़ जाता है। तो किसी नूं बंदा देख के कहंदा भी इधर उधर हो जाइए, कित्थों आ गया। जिसनों देख के मन खुश होंदा, महाराज जी कहते वो सतगुर है, चाहे वह बंदे के रूप दे विच। जिस मिलिए मन होए आनंद, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। वो तो सतगुर दे समान है। हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानो मानस दिया। जिसनों मिल के आनंद मिले वो सतगुर वांगर है। जिसनों दे के मन जिहड़ा है खुश ना होवे, वो सतगुर दे वांगर नहीं है। सो इस करके गुरु साहब जी कहते जाकी बख्श ना मिटे कोई, उसकी बख्शिश नूं कोई रोक नहीं सकता, उसकी मेहर नूं कोई नहीं हटा सकता। इस करके उसकी बख्शिश वड्डी है। कर्म द्वारा बख्शिश है, ते बख्शिश द्वारा मिलाप है।
कर्म द्वारा बख्शिश है ते बख्शिश द्वारा मिलाप है। जाकी बख्श न मिटे कोई, मन वसाइए साचा सोई। सो अपने मालक नूं अपने मन विच इस करके जिहड़ा बख्शिशां देण वाला है उन्होंने वसा के रखना चाहिए। सगल समग्री ग्रह जाके माल, जिस दे घर दे विच सारे पदार्थ हन। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आग्याकारी। महाराज जी कहते सारे पदार्थ सगल समग्री ग्रह है जाके पूरन। सारे ही दुनिया के पदार्थ जिहड़े ने वो मालक दे घर दे विच हन। ते महाराज जी कहते जिसनों वो दिंदा उही लैंदा है, जिस ते वो मेहर करदा उन्हों ही सारे पदार्थ दिंदा है। पदार्थ उहदे कोल ने, होर किसी कोल पदार्थ नहीं है। असी जिन्ने भी बैठे हाँ सानू बाणी विच लिखिया असी सारे ही भिखारी हाँ। दुनिया दे विच दाता किसनों क्या, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। असी जिन्ने भी बाणी दे विच सानू दस्या होया लिखिया होया, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। ओ मालक साडा दाता है, असी सब कुछ ही सारे ही उस कोलों ही प्राप्त करते हैं। प्रभ के सेवक दुख न झूरन। सो गुरु दे प्यारे महाराज जी कहते कदे भी दुख विच कदे भी झोरे दे विच नहीं पैंदे। ओट गही निरपौ पद पाई है, जिस दा आसरा महाराज जी कहते उस जिसनों मिल जाता है, उस दा आसरा जिसनों मिल जाता है उसनों आत्मक दर्जा मिल जाता है। ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुण निध गाई है। सो उस दे अपने हरेक साह दे नाल उस प्रभु दे गुण गाउंदे रहना चाहिए। दूर ना होई कतहूँ जाई है, वो कदे भी साथों दूर नहीं हुंदा। उन्हों लभण जाण दी जरूरत नहीं। नदर करे तां हर हर पाईए, जदों वो नदर मेहर करदा उस दी प्राप्ति हो जाती है। अरदास करी पूरे गुरपास, मैं अपने पूरे सतगुर दे अगे अरदास करदा हाँ जां करदी हाँ, नानक मंगे हर धन रास। सो मैनू नाम धन रूपी सरमाया चाहिए। हे मालक मैनू नाम रूपी धन चाहिए, नाम रूपी सरमाया चाहिए। तो ये चीज़ जी सतगुर तो मिलती है। सो ये सी अज दे लड़ीवार शब्द की विचार जो महाराज जी ने मेहर कृपा करके सेवा लई है। गुरु साहब महाराज इसका भाव अर्थ साडे हिरदे विच वसाउणा, सरबत का भला करना, सब नूं चढ़दियां कलां बख्शणियां, भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।